لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توكلت على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماه اللاذون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفقر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام والعز والمقام والشرف والاحترام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على ابن الزهراء بقية الله في الأرضين واللعن الدائم والأبدي والأزلي والباقي على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ آیت کے ضمن میں کچھ باتیں پیش کی جائیں، میں گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو اور آ سکتے ہوں تو جوان حضرات جو باہر موجود ہیں، اندر جگہ ہے، خلا کو پر کر لیں. پنکھا ہے یہاں پر، انشاءاللہ گرمی کا احساس تو بہرحال سب کو ہے، لیکن عشق اہل بیت کے ٹھنڈک آپ کے قلوب کو مطمئن کرے گی. صلوات پڑھتے ہیں عظمت ایک صلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لیں. محترم ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور خاص کر کے جن سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، یعنی میرے ہم سن اور کم سن بھائیوں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جس کو گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے. دو مناسبتیں ہیں، بہرحال آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. آپ دونوں مناسبتوں کی ایک ساتھ پرصداری کے لیے آئے ہیں، لہذا اسی سلسلے سے آیت بھی چنی گئی. حضرت حق ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور یاد رہے کہ اگر کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور کو
کسی اور مذہب و مسلک کو دین کے طور پر مناسب جانا، فلن یقبل منہ، تو وہ دین، وہ مذہب، وہ مسلک اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آدمی جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مسلک کو اپنایا ہے، مناسب جانا ہے، آخرت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ مختصر سی آیت تھی۔ آغاز گفتگو کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ دین مبین اسلام، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اس دین کو چنا، اور اس کے علاوہ کسی بھی دین کو اگر کوئی مناسب جانتا ہے تو میں خدا بندے مہربانیوں کے باوجود اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے بہت سے موقعوں پہ ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں میں اور بعض وقت بیانات میں بھی یہ بات ثابت آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، شفاف طریقے سے نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین یہ جو اسلام کے طور پہ آیا ہے رسول اللہ کے دور میں آیا ہے۔ نہیں، رسول اللہ اسلام کے سنستھاپک نہیں ہے، رسول اللہ اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اسلام کا آغاز تو آدمیت کی خلقت کے وقت ہی ہوا تھا۔ آدم کو بنایا گیا تو وہ اسلام کی تمہید تھی، نوح کو بھیجا گیا تو اسلام کی تمہید تھی، ابراہیم و اسماعیل و الیاس و یونس و یعقوب و ایوب، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب اسلام کے لیے آئے ہیں۔ اسلام نے تمام دینوں کو ختم نہیں کیا ہے، بلکہ دین میں موجودہ کمیوں کو جو اسلام کے ساتھ ساتھ آئی تھی ان کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے کبھی ما سبق ادیان پہ خط تنسیخ نہیں کھینچا، بلکہ اس میں جو کمیاں رہ گئی تھی اسے پورا کیا ہے، اس میں جو برائیاں داخل ہو گئی تھی اسے نکال کر کے باہر کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کیجئے گا تو اللہ نے جس دین کو پسند کیا، جس دین کو اپنایا اور جس دین کو پبلک اور عوام کے لیے پسند کیا وہ دین اسلام تھا۔ جس دین کو رسول اللہ لے کر کے آئے اور لوگوں کے درمیان پائے اکمال تک پہنچایا وہ دین مبین اسلام تھا۔ اتنا صاف، اتنا شفاف، موتی جیسا دین، اس کی مثال سے پیسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے گنگوتری سے نکلتا ہوا موتی جیسا صاف پانی، اتنا شفاف موتی جیسا پانی جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکل کر کے اسلام جو گنگوتری سے نکلتے ہوئے شفاف موتی جیسے پانی کو دیکھ رہا ہے، اگر وہی سابرمتی کی جھیل میں جا کر کے پانی کی گندگی کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید پانی ہی گندا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، آخری فرق تک مثال پہنچے تاکہ جو بڑا عظیم نتیجہ ہے وہ حوالے کر سکوں۔ گنگوتری سے جب پانی نکل رہا تھا تو موتی جیسا شفاف تھا، لیکن جب پانی چلا تو پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے ساتھ آنے والی ہر چیز کو شامل کرتا ہوا لیتا ہوا چلتا ہے، اور جب بڑھتا رہا تو اس میں گندگی آتی گئی، اس میں کوڑا کرکٹ آتے گئے، اس میں غلاظتیں آتی گئیں۔ اسلام جب محمد الرسول اللہ سے صادر ہوا تھا تو موتی جیسا شفاف تھا، اس میں چمک پائی جاتی تھی، اس میں برائٹنس پائی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھا اس میں یزیدیت، بولہبیت اور بوجہلیت جیسی گندگیاں شامل ہوتی گئیں۔ اتنی گندگی شامل ہوئی کہ بنو عباس اور بنی امیہ کے دین کو دیکھنے کے بعد اب طے کرنا مشکل ہو گیا۔ جو دیکھ رہا تھا جس طرح سے سابرمتی کی جھیل میں دیکھنے والا یہی سمجھ رہا تھا کہ پانی ہی گندا ہے، جس نے جب بنو امیہ اور بنی عباس کے دین اسلام کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھا شاید اسلام کی شکل ہی یہی ہے۔ اسلام کی شکل وہ نہیں تھی جو بنو عباس اور بنو امیہ نے دی، اسلام کی شکل وہ تھی جو شفاف محمد الرسول اللہ نے دی تھی۔ اور اگر اسلام کی شکل وہاں سے لی جاتی تو اسلام کی حقیقی شکل انسانیت تک پہنچتی۔ اسلام کی حقیقی شکل وہاں سے نہ لی گئی تو پھر آپ کے ہندوستان میں جس اسلام کو پریزنٹ کیا گیا وہ اسلام ایسا ہی نکل کر کے سامنے آیا
کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں رقاصہ ناچ رہی ہے، پازیب کی کھنک آ رہی ہے اور ذل الہی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں اسلام کے ریپرزنٹیٹیو اسلام کو اپنے آپ کو اسلام کا کرتا دھرتا بتانے والے، ان کے یہاں آپ دیکھیں لندن میں ایگزیبیشن ہوا تھا ابھی 50-60 سال پہلے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بزرگ، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں پر جب اسلام کے نام پر جو پورا لگایا گیا سیٹ اپ دکھایا گیا تو کہیں پہ طبلہ نظر آ رہا تھا، کہیں پہ بانسری نظر آ رہی تھی، کہیں پہ ڈھول نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ لائے تھے انسانیت کو اوپر لے جانے کے لیے، اس میں طبلہ ڈھول اور موسیقی بن کر کے رہ گیا۔ یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ وہ اسلام ہرگز نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جسے ہندوستان نے دیکھا، وہ اسلام جسے آپ نے دیکھا، وہ اسلام جسے ہم نے دیکھا۔ وہ اسلام کون سا اسلام تھا جس اسلام میں حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام ایسا اسلام ہے جہاں ایک کافرہ جودہ کو گھر میں جگہ دی جاتی ہے۔ وہ اسلام ایسا اسلام ہے جہاں رقاصاؤں کی جھنکاریں پازیب کی آ رہی ہیں۔ وہ اسلام ایسا اسلام ہے کہ جہاں پہ شراب نوشی عام ہے۔ وہ اسلام ایسا اسلام ہے جہاں پازیب اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقیاں یہ سب چل رہے ہیں۔ تو اگر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی انسان اسلام کے اوپر اپنے قلم فرسائی کرنا چاہے گا تو پھر یہاں کوئی اور چیز نہیں نکلے گی، صرف اور صرف کتابی شکل بنے گی تو رنگیلا رسول ہی نظر آئے گا۔ یہ وجہ ہے کہ تم نے اسلام کو دکھایا ہی کچھ ایسا ہے۔ تم نے اسلام کو وہ والا دکھایا ہوتا جو محمد لے کے آئے تھے، جو محمد الرسول اللہ کے یہاں سے صادر ہوا تھا، تو یقین مانیے نہ اس میں کسی کی غیر کی جگہ ہوتی، نہ اس میں کہیں دین کے علاوہ کوئی اور شے ہوتی۔ وہ اسلام جو ہندوستان نے دیکھا، آپ تک پہنچانے لگا ہوں مجلس کا آغاز کرنے کے لیے، جو ہندوستان نے اسلام دیکھا وہ ایسا اسلام تھا جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، باپ کو قید کروا دیا جاتا ہے، اندھا کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی امت اورنگزیب کی ولایت پہ شک نہیں کرتی ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ دیا یا نہیں معلوم کہاں تک میں پہنچا سکا۔ باپ کو قید کروا دیا، اندھا کروا دیا، بھائی کو قتل کروا دیا، لیکن پھر بھی مسلمان کی نظر میں اورنگزیب اولیاء اللہ رہا۔ جہاں لوگ قاتلوں کو ولی سمجھ رہے ہوں، اس میں اگر ولیوں کو قاتل سمجھ لیا جائے تو تعجب نہ کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد کیسے غصب کی گئی حکومت، کیسے تخت تاج اپنایا گیا، کیسے بیٹھ گئے جیسے تیسے بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے تخت پہ تو پھر کیسے بھی رہے ہوں، وہ رضی اللہ بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ بھی ہیں۔ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جبکہ رسول نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ اسلام میں اہمیت تمہاری تبھی ہوگی جو تم تقوی والے ہوگے، جب تم کردار والے ہوگے۔ یہ نہیں کہا تھا جب تم منصب والے ہوگے، جب تم کرسی والے ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عالم اسلام پر نظر پڑی تو ہم نے دیکھا ایک سے ایک خون خرابہ کرنے والے، ان کے آگے رضی اللہ لکھا جا رہا ہے، ان کے آگے اولیاء اللہ لکھا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اسلام اصلی تھا اسے چھوڑ دیا گیا، جو اسلام جعلی اور بنو امیہ کی فیکٹری سے آیا تھا اسے اپنا لیا گیا۔ اگر ان سب چیزوں کو آپ نے ذہن میں تھوڑی سی تمہید رکھ لی ہے تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ یزید، وہ پلید جو گندگی کی صورت میں اس اسلام میں داخل ہوا تھا، شفاف اسلام میں، موتی جیسے اسلام میں، جس نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا، اس کے لیے بھی کل تک بندھے لفظوں میں سپورٹ کیا جا رہا تھا، اور کبھی کوئی ایک آ جاتا تھا آکر ذاکر پتہ نہیں کون سا نائک، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بتاتا ہوا کہتا تھا کہ وہ بھی رضی اللہ ہے۔ کیوں کی؟ دیکھیے اس کے پیچھے بھی ذاکر نائک کو میں پورا قصوروار نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو مکمل قصوروار نہیں سمجھتا ہوں، میں قصوروار ان راویوں کو سمجھتا ہوں جنہوں نے بنو امیہ کی فیکٹری سے پیسے کھا کر کے نبی پہ حدیثیں گڑھنے کا لانچھن لگایا۔
इल्जाम तराशियां की और नबी की जानिब से हदीसें गढ़ी, और अबू हुरैरा, काबुल अहबार जैसे अफराद इसमें शामिल हुए। वो रिवायतें जिसमें कहा गया कि मनसब कोई भी पाले, अगर मनसब पा लेता है तो फिर वो अल्लाह की ताईद हासिल होती है। तो फिर जब मनसब पा लेता है, अल्लाह की ताईद हासिल होती है, तो यजीद ने भी मनसब पा लिया था और अल्लाह की ताईद थी, लिहाजा रजी अल्लाह है। तो उसने भी तो किताबों से कहा है, तुम्हारे इस्लाम की किताबों से नई नई लफ्जें बदल करके कहूं, बनु उमैया के इस्लामी किताबों से कहा है। तो फिर अगर बनु उमैया का इस्लाम यही है तो हम कहते हैं दूर से हमारा ऐसे इस्लाम को सलाम। हमें वो इस्लाम नहीं चाहिए जो बनी उमैया के फैक्ट्री से निकला है, हमें वो इस्लाम चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़हमतों का नतीजा है। कल तक जिस यजीद का मैंने आगाज कर दिया, मजलिस शुरू हो गई, कल तक जिस यजीद का बंधे लफ्जों में सपोर्ट हो रहा था और चेहरा ढांक करके उसकी हिमायत की जा रही थी, आज मार्केट में उसी यजीद को खुल करके सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी हिमायत की जा रही। काहिरा मिस्र से, इजिप्ट में राजधानी है काहिरा, वहां पर एक गिरोह सामने आया है जो गिरोह अपने आप को यजीदी कहता है। आपने सुना था अब तक? नहीं सुना था, हमने भी नहीं सुना था। नदवतुल उलूम से मौलाना नौशाद अहमद साहब, नदवा जानते ही होंगे आप, क्या बताना है इसमें, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे किबला ऐसा ऐसा हादसा हुआ। मैंने कहा लाओ मेरे काम की बात है, लाइयो मुझे भी तो दिखाओ। जब देखा तो पता चला कि साहब ऐसा गिरोह है। मैंने सोचा कि कोई मुस्तमसक होगा, कोई दलील होगी, कोई इल्लत होगी, कोई वजह होगी। भाई हम अपने आप को रिजवी कहते हैं तो हमारे पास वजह यह है कि हम 8वें इमाम से हैं। आप नकवी कहते हैं तो आपके पास वजह यह है कि आप मंसूब हैं इमाम अली नकी से। आप तकवी कहते हैं तो आप इमाम मोहम्मद तकी से मंसूब हैं। आप लखनवी कहते हैं तो लखनऊ से मंसूब हैं। आप कानपुरी कहते हैं तो कानपुर से मंसूब है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई वजह और इल्लत पाई जाती है, जो निस्बत पाई जाती है उसकी वजह से। तो भाई ये अपने आप को यजीदी क्यों कह रहे हैं? कोई तो इल्लत होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो सबब होगा, कोई तो वजह पाई जाती होगी जिसकी बुनियाद पे यजीदी कह रहे हैं। हमने पूछा, इस्तफसार किया तो पता चला, कहने लगे कुरान में एक आयत है, वला यजीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। यजीद लफ्ज कुरान में आया है, लिहाजा ये कहते हैं कि कुरान में आया है तो मुतबर्रिक है। मैं वाकईन ये मिंबर रसूल है, खुदा शाहिद है, मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। दौरान गुफ्तगू खाना खाते हुए, जबकि मकरूह है खाना खाते हुए बात करना, लेकिन क्या किया जाए, मौजू ऐसा था कि बोलना पड़ा, ऐसा मौजू था कि बोलना पड़ा। भाई कहने लगे कि ऐसा ऐसा मसला है, दलील यह है कि कुरान में लफ्ज यजीद आया है, लिहाजा इनके लिए मोहतरम है, लिहाजा इनके लिए मुकर्रम है, और इन्होंने अपने पूरे पूरे कबीले, टोली और गिरोह का नाम ही यजीदी रख लिया है। मैंने कहा अगर ऐसा ही है और लफ्ज का कुरान में आ जाना बाइसे तबर्रुक है, बाइसे बरकत है, तो फिर मुझे कहने दीजिए कुरान में लफ्ज इब्लीस भी आया है, कुरान में लफ्ज खिंजीर भी आया है, कुरान में लफ्ज कल्ब भी आया। मेरे जवान बच्चे नहीं पहुंचे, कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता भी कुरान में आया है। खिंजीर का मतलब होता है सूअर, सूअर भी कुरान में आया है। इब्लीस भी कुरान में आया है। तो अगर कुरान में आना ही किसी के नाम रखने का सबब है तो इब्लीस वाला नाम रख लो, सूअर वाला नाम रख लो, कुत्ते वाला नाम रख लो, फिरौन वाला नाम रख लो, कोई नाम तो रख लो। चंद सेकंड के लिए मैं खामोश हुआ, लेकिन खुदा जाने इल्हामी कैफियत में वहां से जवाब मुयस्सर हुआ जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। निवाला उठाया था, वापस रखा और कहा नौशाद साहब सुनिए, ये इब्लीसी भी अपने को कहलवा सकते थे, फिरौनी भी कहलवा सकते थे, कल्बी भी कहलवा सकते थे, खिंजीरी भी कहलवा सकते थे, अपने को सूअर वाला भी कहलवा सकते थे, कुत्ते वाला भी कहलवा सकते थे, खिंजीर वाला भी कहलवा सकते थे, इब्लीस वाला भी कहलवा सकते थे। लेकिन नौशाद साहब क्या किया जाए, किया क्या जाए? मुश्किल ये है, अगर ये कुत्ते वाला कहते तो सूअर वाली सिफत रह जाती, सूअर वाला कहते तो कुत्ते वाली सिफत रह जाती, इब्लीस वाला कहते तो जानवरों की सिफत रह जाती। ये चाहते थे एक ही वक्त में इब्लीस की भी सिफत हो, कुत्ते की भी सिफत हो, खिंजीर की भी सिफत हो। ऐसा जामे नाम ढूंढ करके रखा,
यजीद जिसमें फिरौन की भी सिफत है, कुत्ते की सिफत है, खिंजीर की भी सिफत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मदो। वो इस्लाम जो आया था हिफाजत के लिए, किसी के दीन पे उंगली उठाने नहीं आया था, किसी के दीन को खराब करने नहीं आया था, किसी के दीन को मना करने नहीं आया था। जब इसने इत्तेहाद की बात की तो कहा वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। हमें कोई वास्ता नहीं है कि तुम्हारा हादी कैसा है, हमें कोई वास्ता नहीं है कि तुम्हारा हादी कैसा है, हर कौम के लिए हादी होगा। और जब बात की मजहब मसलक की तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा दीन हमें मुबारक, हमें तुमसे कोई वास्ता और गरज नहीं है, हम तो अपना काम करना चाहते हैं, हम तो अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं। इस दीन ने इतना मुकद्दस दीन था कि जिस दीन ने मा सबक तमाम अदियान की तायीद की। देखो तुम्हें आदम को भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आदम का इनकार कर दो। देखो तुम्हें नूह को भी मानना पड़ेगा, देखो तुम्हें मूसा को भी मानना पड़ेगा। गो कि यहूदियों की शरीयत के मालिक हैं, जो कि ईसा हैं, वो ईसाइयों की शरीयत के मालिक हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ईसा पे भी ईमान रखना पड़ेगा, मूसा पे भी ईमान रखना पड़ेगा, दाऊद पे भी ईमान रखना पड़ेगा, सारी आसमानी कुतुब पे ईमान रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कुरान को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे अदियान की तरह वाहिद इस्लाम है जिसमें इतनी गुंजाइशें दी गई हैं मेरे अजीजों, इसके अलावा कोई और दीन नहीं है जिसमें इतनी गुंजाइशें दी गई हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी धर्म को उठाइए, आप बौद्धिज्म देखिए, उसमें महात्मा बुद्ध और बस, अगला किसी को नहीं मानना है। ईसाइयत देखिए, ईसा, मरियम, रूहुल कुदुस, बस। आप ये यहूदी जो आजकल फितना फसाद की जड़ बने हुए हैं, इनको देखिए, मूसा, हारून, बस, अगला किसी को नहीं मानना है ना। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा, नहीं, आदम पे भी ईमान रखो, नूह पे भी ईमान रखो, मूसा पे भी ईमान रखो, ईसा पे भी ईमान रखो, ये सारे तो खुदा के भेजे हुए नबी हैं। इतनी गुंजाइशों के बाद जो इस्लाम आया था, इस इस्लाम में हर फेस के लिए, हर जिंदगी के रुकन के लिए, हर जिंदगी के गोशे के लिए शरीयतें बयान की गई थी, एहकाम बयान किए गए थे, मसाइल बयान किए गए थे। इस इस्लाम ने यह भी बयान किया था कि जब तुम तलवार लेके मैदान जंग में आओगे तो देखो, अगर कोई भाग रहा हो तो उसके साथ क्या सलूक करना है, अगर कोई तुमसे मुकाबला करे तो उसके साथ सलूक क्या करना है, किसी का हथियार गिर जाए तो उसके साथ कैसा रवैया करना है। यही इस्लाम जब मैदान जंग से बाहर आया और बाजारों में घुसा तो इस इस्लाम ने तराजू पे भी हाथ रख दिया, देखो तौलने में कैसे रहना है, तौलने में कैसे देना है, खरीदने में कैसे रखना है। यही इस्लाम जब बाजारों से घर तक पहुंचा तो ये बताने लगा, सो तो कैसे सो, सर किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए, उठो तो कैसे उठो, मस्जिद में जाओ तो कदम पहला कौन सा जाना चाहिए, बैतुल खला में दाखिल हो तो कदम कौन से रखने चाहिए, उठो तो किस अंदाज में उठो, वालिदैन के सामने हो तो कैसे हो, बाप के सामने हो तो कैसे हो, भाई के सामने कैसा रवैया हो, चचा के सामने कैसा हो, मजलिस में बैठो तो कैसे बैठो, तन्हाई में रहो तो कैसे जियो। सारी जिंदगी के तमाम गोशों पर नजर रखने वाला इस्लाम, जिसने जिंदगी के किसी पहलू को न छोड़ा हो, ऐसा मुकद्दस इस्लाम, ऐसा मोतबर इस्लाम, जिसको पहुंचाने के लिए जिन हस्तियों ने किरदार निभाया उनकी हस्तियों पे नजर डालिएगा तो इस्लाम में जितनी चीजें इस्लाम के अलावा थी सब एक्सीडेंटल कैरेक्टर थी, उनमें हादसाती तौर पर बातें थी। लेकिन इस्लाम ऐसा था जिसमें दवाम पाया जाता था, मिलाप पाया जाता था। आप देखिए हर फिक्र में, हर सोच में, यहां तक कि हर कौम में, हत्ता और आगे बढ़कर के मैं जुमला कहूं, बाप बेटे में जनरेशन गैप पाया जाता है, फिक्री तफावुत पाया जाता है, सोचने और समझने की सलाहियतें अलग अलग होती हैं। बाप अलग सोचता है, बेटा अलग सोचता है, बेटा अलग सोचता है, बाप अलग सोचता है। मिसालें देता रहूं, बात वाज़ेह होती रहेगी। आप समझ लीजिए कि अगर एक बाप मास्टर है तो हो सकता है कि बेटा अंगूठा टेक निकल जाए। आप देख लीजिए एक बेटा इंजीनियर है तो हो सकता है बाप अनपढ़ रहा हो। इसी तरह आप देखते रहिए, हर 20 साल के बाद तफावुत आता रहता है। आप नजर दौड़ाते जाइए, अगर तारीख में आप उतर करके देखिएगा तो आप देखिए आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन साइंटिस्ट जब कब्रों के अंदर गया तो आइंस अलग रहा, टाइन अलग रहा, नस्लों में कोई आइंस्टाइन न बन सका।
न्यूटन इतना बड़ा न्यूटन रहा है अपने जमाने का, जिसने सेब के जरिए से जमीन की कशिश को कश्फ कर दिया, और उसके बाद जब जमीन की कशिश ने इसको अपने अंदर समोया तो न्यू अलग रहा, टन अलग रहा, टन टन तो हो गए, कोई न्यूटन नहीं बन सका। अनीस अपने जमाने का अनीस रहा है। आप देखते रहें मरसिया निगारी की दुनिया में खुदाए सुखन, बाबाए सुखन, कौन कौन से अलकाब समेटे हुआ अनीस, लेकिन नस्लें हमेशा 19 रही, कोई अनीस नहीं बन सका। गालिब अपने दौर का गालिब रहा, नस्लें हमेशा मगलूब रही, कोई गालिब नहीं बन सका। आप जिस पे नजर दौड़ाइए, जैसा बाप होता है कभी बेटा वैसा नहीं होता है। आप जिन पे नजर दौड़ाइए, गालिब हो, मीर अपने जमाने का मीर था, लेकिन नस्लें देखिए फकीर ही नजर आई, कोई मीर नहीं बन सका। इतना बड़ा फर्क पाया जाता है, जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। लेकिन इस इस्लाम में हमने देखा, जैसा एक था वैसा दूसरा था, वैसा उसका बेटा, वैसा उसका बेटा, वैसा उसका बेटा, वैसा उसका बेटा, वैसा उसका बेटा। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। न पहले के किरदार और रफ्तार में फर्क आया, न आखिर के किरदार और रफ्तार में फर्क आया। पहला जैसा था वैसा ही दरमियानी था, वैसा ही आखिरी था। जमाना और दुनिया थक करके घुटने टेक देगी, लेकिन तसलसुल किरदार मोहम्मदिया में कोई फर्क नहीं आएगा। सलावत पढ़ दें अज़मत मोहम्मद। अब आप अगर महसूस कर चुके हैं, ये मुख्तसर सी तमहीद थी जो मैं लाना चाह रहा था, इस्लाम के दायरे में आपको खाके में उतार करके जल्दी जल्दी इसलिए बयान कर रहा हूं, मतालिब ज्यादा हैं, दो शख्सियतें हैं, दोनों को समेटना है। इसलिए आप समझिए, महसूस कीजिए कि इस्लाम की ये वो शख्सियात हैं जिनके अंदर कभी दुताई नहीं पाई जाती है। जैसा पहले का किरदार होगा वैसा दूसरे का होगा, वैसा तीसरे का होगा, वैसा चौथे का होगा। हालात जमाना तो तब्दील हो सकते हैं, तसलसुल किरदार मोहम्मदिया आवाज नहीं हो सकते। लिहाजा अगर आप नजर कीजिएगा तो रसूल इस्लाम की जिंदगी के दो रुख हैं, आपको दो रुख नजर आएंगे। पहला रुख कौन सा है? पहला रुख वो है जो रसूल ने मक्के की 40 बरस जिंदगी गुजारी। मक्के की 40 बरस की जिंदगी में जब पैगंबर की जिंदगी पे आप नजर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि रुत कहीं और की है, मोहम्मद की रीत कोई और है। वो जमाना, वो माहौल, वो माशरा जहां पर किसी के चीज और सामान को गस्ब करना हुनर माना जाता है, वहां पर मोहम्मद अपने आप को अमीन कहलवा रहे हैं। वो जमाना, वो माशरा जहां बेटियों को दफनाना हुनर माना जाता है, वहां पे बेटी के एहतराम में खड़े हुए जा रहे हैं। रुत कहीं की है, रीत कहीं की है। जहां पर झूठ बोलना हुनर माना जाता है, वहां पर अपने आप को सादिक कहलवा रहे हैं। समाज का रुख कहीं और का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रीत कहीं और की है। और इस माशरे में जहां रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, जहां रास्ते में कूड़ा डाला जा रहा है, 13 बरस की मक्के की जिंदगी शदीद फिशार की जिंदगी है जो आपने देख रखी है। उस रास्ते की जिंदगी को आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा कांटे बिछाए जा रहे हैं, कूड़ा डाला जा रहा है, कंकरी मारी जा रही है, सारे सितम हो रहे हैं। इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने न रास्ता बदला, न तर्ज गुफ्तगू बदला, न इख्तार बदला, न किरदार बदला। वही खातून जो रोज कूड़ा डालती थी, मरीजी के आलम में आई तो जब आंखें खुली तो क्या देखा कि मोहम्मद तीमारदार बनकर के सराहने खड़ा हुआ है। जैसे ही नजर पड़ी, अब तक मोहम्मद को सुना था, आज मोहम्मद को देखा है। सुना हुआ मोहम्मद और था, देखा गया मोहम्मद और है। सुने हुए मोहम्मद को सुन रही थी तो उस पे कूड़ा डाल रही थी। अब जो मोहम्मद को देख रही है तो देखे हुए मोहम्मद को उसके किरदार की बदौलत कहती है, मोहम्मद पहले कलमा पढ़ाओ, गुफ्तगू बाद में होगी। ये असर किस बात का असर था? यह अखलाक मोहम्मदी का असर था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अखलाक के जरिए से पैगाम दे रहे थे इंसानियत को और बता रहे थे मुसलमानों को कि जब कौमें अक़लियत में होती है तो कौमें अखलाक से जीती है, बदअखलाकी से जिंदा नहीं रहती। बहुत अजीम जुमला मैंने अर्ज कर दिया कि जब अक़लियत में होती है, माइनॉरिटी में होती है कौमें, तो अखलाक से जिया करती हैं। आज के जमाने के हिसाब से फिर आप इसको सोचते रहिएगा। कौमें जब अक़लियत में होती हैं तो अखलाक से जीती हैं, बदअखलाकी से नहीं जीती हैं। ये रसूलुल्लाह का दर्स था। 13 बरस की वो जिंदगी
जिसमें मोहम्मद के आस्तीन पे खून का एक छींटा भी नजर नहीं आता है, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसको अहिंसा का पैगंबर कहा जा रहा है इस मक्के की जिंदगी में, जिसे कहा जा रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी कोई किसी तरह के खून खराबे में आते ही नहीं है, वही मोहम्मद को जब देखा गया 10 बरस की मदनी जिंदगी में तो क्या देखा गया, जंगों पे जंगे, जंगों पे जंगे, जंगों पे जंगे, मुख्तसर से 10 बरस के अरसे में 83-84 जंगे हो गई। आप ये सोचिए कि जिसको आपने 53 बरस तक ये देखा हो कि एक छींटा भी खून का उसकी आस्तीन पे न रहा हो, आप 10 बरस में जंग में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा? यही समझ में आएगा कि शायद अभी तक मौका नहीं था, जैसे ही मौका मिला इसने अपनी असलियत जाहिर करना शुरू कर दी। नहीं नहीं अजीजों, ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि जब तक अकलियत में थे तब तक अकलियत की जिंदगी जी, जब अक्सरियत में आए तो अक्सरियत की जिंदगी जी। न मोहम्मद ने तलवार उठाई न मोहम्मद ने सुलह की, दोनों काम सिर्फ इसलिए किया, तलवार उठाने में खुदा की मर्जी थी तो तलवार उठाकर मैदान में आ गए, सुलह करने में खुदा की मर्जी थी तो सुलह करने के लिए आगे बढ़ गए। अगर आपने महसूस कर लिया है तो अब महसूस कीजिए वो अली मुर्तजा जो 13 बरस की जिंदगी से मक्के से रसूल के डिफेंस में खड़े थे। मैंने कहा ना तसलसुल किरदार मोहम्मदिया को देखिए और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। मोहम्मद के किरदार के 2 हिस्से, एक अकलियत की जिंदगी, दूसरी अक्सरियत की जिंदगी जिसमें अपने चाहने वालों की तादाद ज्यादा थी। फिर उसके बाद अली मुर्तजा की जिंदगी देखिए आप कि जब रसूलुल्लाह मक्के में हैं तब से आने वाली खजूर की गुठलियों का जवाब अली मुर्तजा दे रहे हैं। जिधर से गुठली आ रही है उधर ही वापस भेज दे रहे हैं। अगर जुमला मुलाहिजा कर लीजिएगा तो आपकी अकीदतों तक ये महसूस करने वाला मकाम है कि देखिए गुठलियां आती बहुत थी, अपने आप को मुसलमानों का बड़ा साबित कर लेना और है, मुसलमानों का बड़ा साबित कर लेना और है, लेकिन मोहम्मद के लिए अपने सीने को सामने ला देना और है। कोई और नहीं था, कितने बूढ़े निकल गए लेकिन मोहम्मद के दिफा में कोई सामने खड़ा ना हुआ। सिर्फ एक बच्चा है जो आने वाले हमलों को अपने सामने से रोक रहा है। अजीजों यही हुआ, मौलाए कायनात ने यहाँ भी हिमायत की और इसके बाद मक्के की जिंदगी के बाद मदीने की जिंदगी में भी जितनी जंगें हुई हैं, आप यासीन कादरी का वो जुमला मैं बढ़ करके कहूंगा जरूर कि हमें दिखाइए कि किसी और ने, वो तो नाम लेता है कि फला फला ने किसी एक का भी कत्ल किया हो तो दिखाओ। ला वो कहता है लाओ मेरे मुंह पे हवाला मार दो कि किसी एक ने किसी एक का भी किसी एक काफिर को भी मारा हो, किसी एक ने किसी एक काफिर को मारा हो, लाओ मेरे मुंह पे हवाला मारो। असल में ये भी इसके कहने के पीछे भी वजह थी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। वजह यह थी कि एक साहब बड़े जज्बात में आ गए, उन्होंने फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए खलीफा दोम के और कहते हैं कि जिनके बड़ों को अपनी तलवार का मजा चखाया है खलीफा दोम ने, वो आज उनसे नफरत तो करेंगे ही। इससे पहले कि हम जवाब देते यासीन कादरी उठ के कहता है दिखाओ तो सही एक को भी मारा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद तो आप महसूस कीजिएगा कि किसी और ने मदद नहीं की, सिर्फ अली मुर्तजा के साथ थी जो हर जगह रसूल का सीना सफर बन के खड़ी रही। अली मुर्तजा थे जो हर जगह खड़े रहे। वो अली जिसको जमाने में यूं देखा हो कि अली जहां भी जाता है तलवार के अलावा कोई जबान नहीं जानता है। 13 बरस की उम्र से 10-12 बरस की उम्र के बाद से जो अली ने तलवार निकाली है तो फिर 33 बरस तक मुसलसल तलवार चलती ही रही है। जिधर देखो अली के जुल्फकार के चर्चे, जिधर देखो अली के तलवार के चर्चे। बड़े बड़े अरब के शुजाओ बहादुर आए और अली के सामने टिक न पाए। वैसा अली जिसको जमाने ने देखा हो कि जुल्फकार की काट इतनी सरी है, इतनी तुंद है, इतनी तेज है कि बड़ा से बड़ा बहादुर अली के सामने कदम नहीं रोक पाता है, अपने आप को रुका नहीं पाता है, अपने आप को ठहरा नहीं पाता है। वो अली जब सुलह हुदैबिया में कलम लेके चला तो अब वो कलम की रफ्तार उतनी ही है जितनी जुल्फकार की काट थी। अगर महसूस कीजिएगा तो मैं जुमला कह रहा हूं
हूं। वो अली जो अब तक तलवार से बातें कर रहा था, लोगों ने देखा कि जब कलम चला तो न कलम की रफ्तार में कोई फर्क है, न जुल्फिकार के वार में कोई फर्क है। ये क्यों हुआ? अली न कलम चलाता है न तलवार चलाता, वह वही करता है जिसमें रज़ा इलाही हो। अगर रज़ा इलाही कलम चलाने में है तो कलम चला दिया जाएगा, रज़ा इलाही जुल्फिकार चलाने में है तो जुल्फिकार चलाया जाएगा। यही वजह है कि इसी रज़ा इलाही के मद्देनजर रसूल की वफात के बाद, बल्कि मैं गलत कह रहा हूं, शहादत रसूल के बाद जब अली मुर्तज़ा ने तलवार को नियाम में रखा तो यही अफराद जो अली को शेर कहते थे, अली को असद कहते थे, असदुल्लाहिल गालिब कहते थे, यही अफराद कहने लगे कि अली डर गया है, अली खौफज़दा हो गया है, अली घबरा गया है। लेकिन 25 बरस की खामोशी के बाद जब दोबारा सिफ़ीन और नहरवान में ये जंग के लिए तलवार खिंची तो बूढ़ा शेर वैसे ही हमलावर हुआ जैसे 33 बरस का जवान अली। आपने देखा कि अली की तलवार की काट 63 और 60 बरस में भी उतनी ही रफ्तार से चल रही है जितनी 30 और 33 बरस में चल रही थी। ये क्या हुआ? जमाना ये समझ रहा था कि अली के कदम लरस गए हैं, अली थर्रा गए हैं, अली डर गए। नहीं नहीं, अली ने वही किरदार दिखाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। जब जरूरत तेग की थी उस वक्त तेग उठाई, जब जरूरत कलम की थी उस वक्त जरूरत कलम की देखते हुए कलम को उठाया। बस अजीजों में ले आया खींच करके वहां तक जहां तक मैं लाना चाह रहा था। रसूल इस्लाम के बाद दो चीजों को, दो किरदारों को रसूल ने एक करके पेश किया हमेशा लोगों के सामने, वो है हसन और हुसैन। रसूल के दोनों नवासे, इन दोनों नवासों को रसूल इस्लाम ने एक करके जमाने के सामने पेश किया, कभी अलग अलग पेश नहीं किया। इन दोनों को गोया के जिस्म दो हैं लेकिन जान एक है, गोया के जिस्म दो हैं लेकिन रूह एक है, गोया के जिस्म दो हैं लेकिन फिक्र एक है, ऐसा बना करके पेश किया। आप देखिए रसूल नाका बने हैं, जुल्फें दोनों के हवाले कर दी हैं। आप अगर अंदाजा लगा लीजिए इस पे, किसी सवारी में ड्राइवर दो हो जाते हैं तो कभी कोई इधर जाने का सोचता है, कभी कोई उधर जाने का सोचता है, लेकिन रसूल जैसे नाका बने हुए हैं और उसके बाद दोनों के बागडोर, अपने नाके की बागडोर जुल्फे नहीं दी हैं, नाके की बागडोर दे रखी है हसन और हुसैन के हाथों में। लेकिन जमाने ने देखा जिधर हसन जा रहा है उधर हुसैन जा रहा है, जिधर हुसैन चाह रहा है उधर हसन चल रहे हैं। ये रसूल ये नहीं दिखा रहे हैं बल्कि जमाने को समझा रहे हैं कि नवासे दो जरूर हैं लेकिन फिक्र में, सोच में, रूह में, रवान में ये तन्हा एक हैं। जो एक की फिक्र होगी वही दूसरे की फिक्र होगी। जो गोया रसूल बताना चाह रहे हैं, जिस तरह चेहरे पे दो आंखें होती हैं लेकिन मंजर एक होता है, इसी तरह हसन और हुसैन शहजादे दो हैं लेकिन किरदार एक है। अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे कहने का हक हासिल हो जाता है। दो किरदार हैं लेकिन किरदार एक है, दो शख्सियतें हैं माजरत लेकिन किरदार एक है। एक ने सुलह की, एक ने जंग की। जमाना ये समझ रहा था हसन का मिजाज कुछ और है, हुसैन का मिजाज कुछ और है। हुसैन जंगजू मिजाज के हैं, हसन सुलह पसंद इंसान है। नहीं नहीं, जैसे रसूल इस्लाम की जिंदगी में दो पहलू मिलते हैं, जैसे अमीर कायनात की जिंदगी में दो पहलू मिलते हैं, इसी तरह हसन और हुसैन एक किरदार हैं। इनकी एक जिंदगी का नाम है सुलह हसन, एक पहलू का नाम है जंग हुसैन। अगर महसूस कर लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, अगर इन दोनों कैरेक्टर पे नजर डालिएगा तो ये वो दो हिस्से हैं कि रसूल ने दोनों को एक जागीर का जागीरदार बनाया। जन्नत एक है, सरदार दोनों हैं। नहीं, मैं मिसरे पढ़ दूं ताकि जरा सी और ताजगी आ जाए, खस्तगी बरहम हो आपकी। तख्ती पे दोनों भाई की तहरीर एक है, तख्ती पे दोनों भाई की तहरीर एक है, यानी कि माँ के शीर की तासीर एक है। तख्ती पे दोनों भाई की तहरीर एक है, यानी कि माँ के शीर की तासीर एक है। नाना ने इन नवासों को बांटा नहीं कभी, जागीरदार दोनों है, जागीर एक है। जागीरदार दोनों हैं, जागीर एक है। और अगर मिसरे पहुंच जाएं और मिसरों की नजाकतें आपके मिजाज आलिया तक पहुंच जाएं तो दुआएं जरूर दीजिएगा। जागीरदार दोनों हैं, जागीर एक है। और मेहंदी का रंग
सब्ज भी है और सुर्ख भी। मेहंदी का रंग सब्ज भी है और सुर्ख भी, मेहंदी का रंग सब्ज भी है और सुर्ख भी, यानी मिजाज शब्बर शब्बीर एक है। बड़ा मसला पेचीदा है, चूंकि दो शख्सियतों को मिला करके एक नतीजा हवाले करना है, लिहाजा मेरे लिए मंजिले इम्तिहान है। सरी बयान भी बहुत तेज और रवान रख रहा हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा मतालिब आप तक पहुंचा सकूं। अजीजों, मेरे साथियों, दोनों का किरदार एक है, दोनों की रफ्तार एक है, दोनों की गुफ्तार एक है। जो सुलह जंग दिखाई दे रही है वो हमारे देखने और नजरिए की खोट है। हसन और हुसैन के किरदार में कमी नहीं है, इसलिए कि रसूल ने दोनों को बना करके भेजा है। एक ऐसा करेगा, एक वैसा करेगा। मिसाल दूं और बात को रोक दूं, यहीं पर गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक सलावत पढ़े अज़मत मेरे साथियों, मेरे अजीजों, नजफ अशरफ में एक उस्ताद मोहतरम थे जिनसे बच्चों ने, तुल्लाब ने, हक भी बनता है, हमारे ही मजहब में ये हिम्मत है कि हमारे बुजुर्गों से सवाल किया जाए, वरना बाकी जगहों पे अगर कोई सवाल होता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है कि मजहब के नाम पे सवाल नहीं किया जाता है। आस्था सवाल का विषय नहीं होता है, आस्था का विषय होता है। मजहब पे सवाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन तन्हा तशय्यो ऐसा मजहब है जहां कहा जाता है पहले सोचो फिर मानो। ये तशय्यो का इम्तियाज है, कहा जाता है पहले सोचो परखो उसके बाद मानो। यही वजह है कि तुल्लाब उलूम दीनिया ने अपने मर्जे तकलीद और उस्ताद से पूछा, ये बताइए हसन का मिजाज क्या सुलहामेज था और हुसैन का मिजाज क्या जंगजू था? कैसे हुआ कि दोनों भाई एक ही घर में परवरिश पा रहे हैं लेकिन मिजाज में इतना तफावत हो? सुबह हाउस पे आना हम बताएंगे। दूसरे दिन हाउस पे बच्चे तशरीफ लाए और बच्चों को उस्ताद ने अपना अमामा उतारा। मैं अमामा तो नहीं उतार सकता, बनाना नहीं आता, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मेरे अजीजों, अमामा उतारा उस्ताद ने और हौज में भिगो दिया, हौज के अंदर डाल के भिगो दिया। अब उसके बाद मैंने जो इस्लाम के आगाज की बात कही थी कि कसाफतें, गंदगियां इसमें शामिल होती गईं, जिन गंदगियों की बुनियाद पे इस्लाम का असली चेहरा मस्क हो गया और हकीकत इस्लाम से लोग रूशनास होने के बजाय दूर होते चले गए। लिहाजा उस्ताद ने पानी में डाला अमामा और डालने के बाद निकाला। निकालने के बाद एक गोशा एक तालिब इल्म के हाथ में, दूसरा गोशा दूसरे तालिब इल्म के हाथ में, और कहा इसे निचोड़ो। दोनों बच्चों ने निचोड़ने की ये जो प्रक्रिया होती है इसे शुरू कर दिया। एक दाहिनी तरफ राउंड लेने लगा तो दूसरा बाईं तरफ राउंड लेने लगा। उस्ताद ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, दोनों दाहिनी तरफ लो या दोनों बाईं तरफ लो। दोनों दाहिनी तरफ लो या दोनों बाईं तरफ लो। इन्होंने थोड़ी देर तो कोशिश की कि उस्ताद मोहतरम हैं, उस्ताद हमारे अजीज हैं, उस्ताद हमारे सरकार हैं, लिहाजा 2-4 राउंड लगाए, थक हार के बैठ गए। उस्ताद जिंदगी भर नचाते रहेंगे, नाचता तो रहेगा, पानी और गलाजतें बाहर नहीं आएंगी। का समझ गए मैं जवाब देना चाह रहा था, जवाब पहुंचा लिया। कहने लगे सरकार जवाब तो नहीं समझ में आया। कहने लगे देखो बेटा, अगर तुम इधर घूमोगे और ये भी इधर घूमेगा तो इसके अंदर का पानी निचोड़ करके बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर की गंदगी बाहर नहीं आएगी। लिहाजा जरूरी है कि एक उधर जाए दूसरा इधर जाए। इस्लाम में बहुत सारी गंदगी दाखिल हो गई थी, इस्लाम की गंदगियों को निचोड़ना था। हसन ने एक रुख अख्तियार किया, हुसैन ने दूसरा रुख अख्तियार मिल करके
حسن اور حسین کے اختلاف نظر کو نہ دیکھو، ان کے مقصد کو دیکھو۔ مقصد یہ تھا ایک ادھر رخ کرے دوسرا ادھر رخ کرے، تاکہ بیچ میں آنے والی ابو لہبیت، یزیدیت اور ابو جہلیت کو ایسے نچوڑا جائے کہ ان کا چہرہ الگ ہو جائے، اسلام کا شفاف چہرہ الگ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بڑی عظیم مصلحت اور بڑے عظیم اس سوچ اور فکر تک لے آیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے حسن کا مزاج الگ ہے، حسین کا مزاج الگ ہے۔ جی نہیں، ان کا مزاج ایک ہے، اور وہ مزاج صرف بقائے دین الہی ہے۔ یہ جہاں پر بھی صلح سے دین بچتا ہوگا صلح کریں گے، جہاں پر جنگ سے دین بچتا ہوگا وہاں تلوار لے کے میدان میں آ جائیں گے، پھر ان کو جان کا خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں صلح اور جنگ مصلحتوں کے تحت وہ کرتا ہے جو مصلحتوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور کرسیاں جس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کی ٹھوکروں میں کرسیاں ہوتی ہیں، جس کی ٹھوکروں میں کرسیاں ہو، جس کی ٹھوکروں میں تخت و تاج ہو، وہ کیا ہی کسی مقصد کے تحت جنگ کرے گا، کیا ہی کسی مقصد کے تحت صلح کرے گا۔ اسے نہ کرسی چاہیے تھی نہ تاج چاہیے تھا، یہ گھرانہ تو کرسیاں دیتا ہے، کرسیاں بناتا ہے، تخت و تاج عطا کرتا ہے۔ یہ تو بڑی بات میں نے کہہ دی کہ اس گھرانے میں کیا بات ہے۔ اگر کوئی اس گھرانے کی غلامی کا مکمل شرف پا جائے تو خود غلام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تخت و تاج اس کی ٹھوکر میں ہوتے ہیں۔ شاید میں کہہ نہیں سکا، جوانوں کو پہنچا نہیں سکا، زمانے کا سب سے بڑا شخص آ کر کے کہتا ہے کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے غلام اہل بیت ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنی بات کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ کنگ میکر ہیں، یہ بادشاہ بناتے ہیں، یہ جسے غلام بنا لے وہ زمانے کا بادشاہ بن جاتا ہے، جو ان کی غلامی کو پالے وہ زمانے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو پھر زمانہ ان کے آگے کیا ہے؟ یہ کسی تخت و تاج کے لیے کیا حکومتوں کے لیے صلح و جنگ کریں گے؟ نہیں عزیزوں، ان کا مقصد صرف بقائے اسلام تھا، اور بقائے اسلام کے لیے جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ ذات رسول ہو، آخر تک تسلسل کردار محمدیہ میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے ہر زندگی میں صرف ایک مقصد تھا، رسول پوری زندگی جیے اسلام کے لیے، علی پوری زندگی جیے اسلام کے لیے، حسن و حسین پوری زندگی جیے اسلام کے لیے، اسی طرح آخری مہدی آخر الزمان تمام زندگیاں ایسی ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے، حال کیسا بھی ہو اسلام محفوظ ہے، حال کیسے بھی ہوں اسلام پہ آنچ نہ آنے پائے۔ اب جب یہ مقصد لے کر کے چلے ہیں تو پھر کچھ بھی آتا رہے، زمانے کا حوادث کیسے بھی ہوتے رہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے، میں دو جملے کہوں گا، وقت تمام ہو چکا ہے، زحمتیں بھی تمام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو اگر آپ کسی غیر قوم پہ، غیر در پہ، غیر گھرانے پہ نظر ڈالتے تو وہاں دیکھتے کہ موت کے ٹائم عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ بادشاہ ہیں جو کنگ میکر ہیں، یہ جو بادشاہ بنانے والے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کے یہاں نہ صرف دنیا والے بلکہ آسمانوں والے بھی ان کے در دولت پہ محتاج نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا تو فاطمہ کا زنجیر در دق الباب ہو رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، پیغمبر فاطمہ کی آغوش میں ہے۔ عالم یہ ہے کہ رسول نے سر رکھا ہوا تھا، رسول غنودگی کے عالم میں، بیٹی ہے جو باپ کی ایسی کیفیت دیکھ کر کے گریہ فرما رہی ہے، اور اسی اسنا میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان والے ان کے محتاج ہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں، آسمان والوں نے دیکھا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک مرتبہ بی بی نے جب 3-4 مرتبہ اسے روک دیا کہ آنے والے ابھی بابا آرام کر رہے ہیں، ابھی بابا کا حال ٹھیک نہیں ہے، بابا مل نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس نے پھر سے دق الباب کیا، اب بی بی سے برداشت نہ ہوا، رخسار مبارک سے ہوتے
होते हुए आंसुओं के गर्म कतरे रसूल इस्लाम के खद्दे मुबारक तक पहुंच गए। आंखें खोली, देखा बेटी अभी रोने का सबब क्या है बाबा? कोई है जो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है, मेरे मना करने के बावजूद मानता नहीं है। मैं कहती हूँ चला जा, लेकिन जाने को तैयार नहीं है। ए फातिमा, वाहिद तुम्हारा दरवाजा है जहाँ ये इजाजत मांग रहा है, वरना कायनात में कोई दर ऐसा नहीं बना जहाँ मलकुल मौत इजाजत मांगता हो। अज़ादारो, इसी के साथ फातिमा ने इजाजत दी। मैं कैसे कहूँ, फातिमा ने इजाजत दी, मलकुल मौत दाखिल हुआ। रसूल इस्लाम की रूह कफ़स मुंसुरी से लेकर के परवास कर गया। ये पहला मरहला था जहाँ बीबी ने बाप का दाग देखा है। 28वीं सफर थी अज़ादारों। इसी के बाद यही तारीख थी जो दोहराई गई। अहले बैत के घराने में फिर मुसीबत इसी तारीख में आई। आप सब रोने के लिए तैयार हैं, आंसू बहाने के लिए आमादा हैं। अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने ज़ाहिरन शबीह ताबूत की ज़ियारत भी कराई जाएगी। रोने के लिए आमादा, दिल खोल के रोइएगा, इसलिए कि आज वो तारीख है जब हमारा और आपका दूसरा इमाम जहर दगा से शहीद कर दिया गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। जहर का आलम यह था कि हसन का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, हसन का चेहरा पीला पड़ चुका था। बाज़ उलमा बयान करते हैं कि जब हसन को जहर का असर शदीद हुआ तो हसन ने आवाज दी, बहन ज़ैनब जरा एक तश्त तो लेकर आओ। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, जरा तसव्वुरात को मदीने की गलियों में ले जाओ। बहन तश्त लेकर के आई। क्या देखा, जैसे ही तश्त को बरादर के सामने रखा, कलेजे के टुकड़े कट कट के तश्त में गिरना शुरू हो गए। अरे बहन है जो ये देख रही है, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए जो ज़ैनब देख रही। क्या देखा, भाई का कलेजा तश्त में आके गिर रहा है। बाज़ उलमा बयान करते हैं जब शुमार किया गया तो हसन के कलेजे के 72 टुकड़े। अल्लाह जाने इस तादाद में क्या ऐसी खासियत है। हसन के जिगर के 72 टुकड़े हुए, हुसैन के साथी 72 हुए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। लो अजीजों, वसीयत का वक्त आया, सबको हुसैन के हवाले किया, एक एक के लिए वसीयत की। मेरे मौला हसन ने वसीयतें तमाम हुई, हसन की हिचकियां शुरू हुई, रूह कफ़स मुंसुरी से परवास कर गई। मुझ में ताब नहीं है मुकम्मल मसाइब पढ़ सकूं, लेकिन 2 मंजिलें जरूर पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, इधर रूह का कफ़स मुंसुरी से परवास करना था। मेरे मौला हुसैन ने आस्तीन को समेटा, गुस्ल के लिए आमादा हुए, गुस्ल देना शुरू किया। भाई को भाई ने गुस्ल दिया। बड़े खुश नसीब हो मेरे मौला हसन, मदीने की गलियों में हुसैन ने तुम्हें गुस्ल दे दिया। गुस्ल मुकम्मल हुआ, गुस्ल के बाद कफन पहनाया गया। अल्लाह जानता है तुम्हारे जहनों में शक्लें मौजूद हैं। वो कफन के लिए मुस्तहब ये है सफेद कपड़ा दिया जाए, अमल मुस्तहब है सफेद कपड़ा दिया जाए। हसन को सफेद कपड़े में कफन पहनाया गया। कफन पहना करके जनाजे को घर के चंद लोगों ने उठाया। जनाजों का दस्तूर ये है कि जब घर से चले जाते हैं तो पलट कर कोई जनाजा दोबारा घर में नहीं आता। वाहिद हसन का जनाजा है जो अहले खाना ने ले करके बाहर जब किया है और चाहते हैं कि रसूल के पहलू में दफन करे। मरवान की जानिब से, लाइन की जानिब से तीरों की बारिश हुई। हसन के जिस्म पे कई तीर आके लगे। वो सफेद कफन जो बहन ने सफेद पहनाया था, जो भाई ने सफेद पहनाया था, तीरों की बारिश के सबब कफन सुर्ख हो गया। अल्लाह जुमला कहूं अजीजों, मैं सुन सकोगे कैसा गजबनाक जुमला है, कितना अजीम जुमला है। अज़ादारो, हसन का कफन सुर्ख हो चुका है। बीबियों के दरमियान जब लाशा दोबारा लाया गया, ज़ैनब ने
دیکھا سفید کفن میں بھیا کو بھیجا تھا، لال کفن میں لایا گیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے، جنازے کے قریب بیٹھ گئی، عزادارو قیامت ہو گئی، ایک ہاتھ زمین مدینہ پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے حسن کے جنازے کے تیر پکڑے، زینب نے نکالنا شروع کیا۔ ارے 3 برس کے بچے کو لے کے فروا ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی، سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اے میرے لال قاسم کاش تم بڑے ہوتے، ارے تمہارے باپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، میرے لال کاش تم جوان ہوتے، ارے جوان ہوتے تو ان ظالموں کو جواب دیتے۔ عجب نہیں قاسم نے سر اٹھایا ہوگا، اے اماں بابا کا جنازہ گیا تھا، جنازہ صحیح و سالم گھر واپس آیا، اماں ارے جب میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا صحیح و سالم نہ آؤں گا، میرا جنازہ چچا حسین ابا کے دامن میں بھر کے گٹری میں لے کر کے آئیں گے۔